आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Once again, welcome back to all of you on your favorite show of your favorite channel, Radio Tashan, that is खेल की बात रेडियो टशन के साथ. So, it's a good news coming up as far as South Africans fans are concerned, but heavy defeat for India in their fixture against South Africa in Perth, which was a bouncy track. Everything was possible. We all were talking about the game, how the game will pan out, what can happen, and exactly the same thing happened in the game, what was expected from the pitch. So, the scenario of the game, before I start the show, it will be only fair to tell you more about the game in brief, in detail. So, India won the toss. Captain of India, Rohit Sharma, and they have decided to bat first. According to me, it was not the good decision, because India is a very good team when it comes to off chasing. Everything was going like crumble, just like a bullet. What I can say, tash ke pattu ki tarah bikhar jana. Everything was going on like that. 49 for 5. Virat Kohli went back cheaply. KL Rahul is continuously in a bad form. Rohit Sharma tried, hit it a 6 as well, but unfortunately he got out. So 49 for 5 in the 10th over, and then Surya Kumar Yadav, the magical player of India, Sun is shining. Here it is correctly pronounced, the sun is shining, because a bit of excitement is there. Surya Kumar Yadav batted well for his 68 of 40 delivery. Other day it would have been more valuable inning, but here in this match it was proven as a loss inning. Nevertheless, India scored 133. 134 to get, which was getting difficult actually from bowling perspective, but India bowled well, started very beautifully. Arshdeep, not to forget, given a good start to Indian attack by picking up 2 very good wickets. Then Shami came back and picked up a wicket. So 3 for the loss of 26. That is what the score, even 24 if I'm not wrong. So that is what the score of South Africa. And then a beautiful partnership came into existence of David Miller and Eden Markram. Now, for discussing more on the match, we have our guest, Mr. Ram Kishanji. Welcome back on the show, man. On this defeat, what is your take? जी धन्यवाद। राम जी, मैंने आपसे बस अभी इतना पूछने के लिए आपको इस शो पर आमंत्रित किया है, वो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल पहली जो प्रतिक्रिया आप ये दे दीजिए मुझे, भारत की हार से क्या लगा आपको? पहली चीज, भारत की हार से हर हिंदुस्तानी का दिल टूटा होगा, और दूसरी चीज कि एक चीज दिमाग में अवश्य रखनी चाहिए भारतीय थिंक टैंक को, भारतीय कोच को, कि कहीं ना कहीं इस हार से हमें तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। इस हार से हमें सीखने की जरूरत है कि कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ कमियां रहीं और किनको दुरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि ये मानिए कि ये जो हम सेमीज में खेलेंगे या सुपर 4 में खेलेंगे, उसका ये रिहर्सल है, या यूं कहें कि सुपर 4 की ये तैयारी है, और हमें क्या क्या सुपर 4 में दिक्कतें आएंगी उसका आज कहीं ना कहीं पर्दाफाश हुआ है। See, according to me, the Indian team fielded very sloppy. They fielded badly actually. अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने भारत के बहुत से मैचेस देखे, दबाव में था भारत। 5 विकेट गिरने के बाद 50 रन के आसपास जब आपकी टीम का ऐसा हश्र हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर में होते हैं। और उसके बाद सूर्य कुमार ने एक अच्छी इनिंग खेली, मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद जब भारत की बॉलिंग आई, अच्छा स्टार्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। आपने 20-22 रन 24 रन पर 3 विकेट गिरा दिया अपोनेंट के, तो आपको गेम में ऊपर होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था, बट इट डिडंट हैपन एक्चुअली। रीजन जो मेरी समझ में आया, मुझे लगता है आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं,
मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अपनी जो समझ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये कि भारत की फील्डिंग कहीं ना कहीं भारत को नीचे गिराया, लेट डाउन किया, जो नहीं होना चाहिए। आप इस तरह के मैचेस में ऐसे हाफ चांसेस को कन्वर्ट करते हैं, बड़ा आसान सा कैच था कोहली के लिए। मैं मान सकता हूं कि एक बार आप कह दें कि जी अंडरलाइट कैच लेना मुश्किल हो जाता है, कई बार प्लेयर्स अपने आप को रोशनी से बचा नहीं पाते, बहुत सारी चीजें। यहाँ मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताऊं, वो कैच बड़ा इजी था। जैसा मैंने कमेंटेटर को सुना या कुछ देखने वाले मेरे साथ जो बैठे थे, उन्होंने बताया बड़ा इजी कैच था, वो आसानी से पकड़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसको अगर हम एक किनारे रख दें। उसके अलावा अगर मैं देखूं रोहित शर्मा का एक रनआउट चांस जो मिस किया उन्होंने, बहुत अच्छा चांस था। प्लेयर जो था फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं था, आराम से एक आध सेकंड का समय और ले सकते थे, स्टंप को हिट कर सकते, बट हुआ नहीं। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मान सकता हूं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का समय होता है डिसीजन लेने के लिए, मुश्किल हो जाती कई बार। क्या देखते हैं आगे भारतीय फील्डिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आपकी समझ से? रोहित शर्मा ने भी कहा, बल्कि वो उस पर मैं आऊंगा, पहले आपकी राय ले लेता हूं। जी, काफी खराब फील्डिंग हुई। इसका कारण कहीं ना कहीं वो डेविड मिलर और एडम माकरम ने जो पारी खेली, जो माकरम ने जो पराक्रम दिखाया, कहीं ना कहीं वो भी है। और दूसरी बात कि जल्दबाजी की भारत ने, खराब फील्डिंग उसी कारण हुई, जल्दबाजी के कारण, अफरा तफरी के कारण। और भारत को इन चीजों को थोड़ा सा दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करता हूं फील्डिंग कोच हमारी या हमारा पूरा सपोर्ट स्टाफ इस पे अवश्य ध्यान देगा। और मुझे लगा वो टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जो रनआउट चांस मिस किया, वो मिलर, कोई और नहीं था, मिलर द किलर इस नाम से फेमस है। और माकरम का पराक्रम आपने सभी ने देखा इस मैच में, एक जबरदस्त पारी जीत की ओर अग्रसर साउथ अफ्रीका को किया। बीच में हालांकि छोड़कर चले गए, लेकिन तब तक मुझे लगता है काम पूरा कर दिया था। अच्छा, क्या लगता है आपको अश्विन को वो 18वां ओवर देना आपको कहीं से मतलब टर्निंग पॉइंट लगा है? क्योंकि 13 रन 14-15 रन उस ओवर में आए, 2 छक्के मिलर ने लगाए, क्योंकि अश्विन को भी ये पता था कि मिलर उनके अगेंस्ट चांस लेंगे, उनके पास कोई विकल्प है नहीं। तो मुझे लगा कि शायद मिसकैलकुलेशन हुई, या फिर ठीक समझते हैं इसको आप? देखिए, दूसरा कोई विकल्प वहां पे नहीं था। मुझे लगता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अश्विन हमारे भारत में ज्यादा बेहतर बॉलर नजर आते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, हमें अश्विन नहीं, हमें चहल चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, यदि यहाँ चहल डालता 18वां ओवर, तो मैं ये नहीं कहता कि ये छक्के नहीं पड़ सकते थे, मगर वहां मिलर का विकेट भी जा सकता था। मैं इससे काफी स्तब्ध हूं कि लगातार निरंतर अश्विन को मौके दिए जा रहे हैं। देखिए, विकेटें भुवी ले लेंगे, अर्श ले लेंगे, विकेटें शामी ले लेंगे, लेकिन चौथा गेंदबाज आपका कौन है? चौथा गेंदबाज आपका अश्विन है। जब तक अश्विन विकेट नहीं लेगा, तब तक आप मैच नहीं जीतेंगे। बल्लेबाजी के बलबूते पे आप कितने मैच जीतेंगे? लेकिन मैं फिर कहता हूं कि गेंदबाजी में हमें जो चौथा बॉलर है, जो वो बीच में विकेट निकाल के दे, तभी भारत मिड इनिंग में कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ पाएगा। क्या लगा आपको, दिनेश कार्तिक की जगह पर ऋषभ पंत को खिलाया जाना चाहिए? इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि दिनेश कार्तिक के साथ एक दिक्कत है जो मैंने अब तक समझा देखा, वो ये कि शायद दिनेश कार्तिक को अगर ज्यादा गेंदें दे दी जाती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ब्लॉक करें, डिफेंस करें, या फिर शॉट खेलें। वो 10, 12, 15 गेंद के ही क्या प्लेयर है? और अगर ये मैं मानूं कि 15-20 गेंदों के या 12-15 गेंदों के प्लेयर दिनेश कार्तिक हैं, तो क्या उन्हें वर्ल्ड कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का हिस्सा होना चाहिए था? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? देखिए, मैं क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ, और बार बार ये बात उठती रही है कि क्या दिनेश कार्तिक को केवल हमने 15 गेंदों के लिए रखा है? यदि कभी कोलैप्स हो जाता है, जो आज हुआ, यदि कोलैप्स हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या दिनेश कार्तिक को बिल्कुल गेम से बाहर कर देंगे? मैं फिर कहता हूं कि आपके पास ऋषभ पंत होने चाहिए, क्योंकि कई कारण है। पहली चीज, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी के रूप में देखें तो ऋषभ पंत आपके ऑर्डर में फिट बैठते हैं। दूसरी बात, एक और बात जिस पे आपने जिक्र नहीं किया है, मैं उस पे भी जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन दिनेश कार्तिक कहीं ना कहीं केवल 15 गेंदों में होने के लिए आप उनको रख रहे हैं। मुझे लगता है यदि कई बार कोलैप्स हो जाए, उसके लिए आप ऋषभ पंत के साथ जाएं और ऋषभ पंत को स्टेबल करें।
उनको भरोसा दें कि आप के बैट से यदि रन ना भी निकले तो भी आपको खिलाया जाएगा, आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, केएल राहुल के ऊपर मैं जरूर आना चाहूंगा। बार बार बात होती है बहुत पोटेंशियल है, बार बार बात होती है कि बहुत प्रतिभा है, लेकिन मैं आज कहता हूं अब हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। और हमें ऋषभ पंत के साथ या सूर्य कुमार के साथ पारी की शुरुआत या कोहली के साथ किसी के साथ भी शुरुआत कराएं। और मुझे लगता है कि हुड्डा और ऋषभ पंत को अब और चांस देने की आवश्यकता है और अश्विन के जगह चहल के साथ हमें जाने की आवश्यकता है। और आज तो अक्सर भी नहीं खेले, जब अक्सर की हमें जरूरत थी नहीं खिलाया गया, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाया गया, क्या फायदा हुआ? मैच आप गेंदबाजों से जीतेंगे ना कि बल्लेबाजों से आप। जी नहीं, अगर आपने दीपक हुड्डा को खिला ही लिया था तो एक आध ओवर डलवा लेते, कोई बुराई तो थी नहीं भाई। आपने दीपक हुड्डा को एक बॉलर के रूप में भी खिलाया। आप ये एक्सक्यूज देते हो कि जी वो तो ऑफ स्पिन फेंकता है, जरूरत पड़ने पे एक आध ओवर करा सकते हैं। तो इस मैच में जरूरत थी। मैं ये नहीं कहता कि वो अगर बॉलिंग करने आता तो दो तीन विकेट ले लेता, बट ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 रन का ओवर फेंक देता, शायद प्रेशर आता किसी दूसरे बैट्समैन के सामने, सॉरी बॉलर के सामने। बैट्समैन या बैटर जो भी कह लूं, आईसीसी के नए नियमों के अनुसार बैटर कहा जाता है क्योंकि महिलाओं का क्रिकेट भी है, तो क्या पता वो बैटर चांस लेता और विकेट मिल जाता। आप कहीं इसमें भारत के थिंक टैंक की चूक नहीं देखते अगर आपने दीपक हुड्डा को खिलाया है तो? मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार दीपक हुड्डा ने शुरुआत की है गेंदबाजी की और अच्छे प्रभावी रहे हैं, उनके 1-2 ओवर आप डलवा सकते थे। मैं आज भी कह रहा हूं और मैं हमेशा कहूंगा, क्योंकि ये मेरी पुकार नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की पुकार है। ये आज किसी एक के दिमाग को धक्का नहीं लगा, दिल को धक्का नहीं लगा है, ये हर हिंदुस्तानी के दिमाग को धक्का लगा है। और सच में बहुत कुछ अभी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसा कि मैं सनी भाई को सुन रहा था और सबको मैंने सुना, तो मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जो कुछ कठिन फैसले हमें लेने पड़ेंगे यदि हम जीतना चाहते हैं ट्रॉफी तो। और दीपक हुड्डा की जहां तक रही बात, तो दीपक हुड्डा को निश्चित तौर से यदि खिलाया था आपने, तो पहली बात तो आपने प्रेशर में उसको बल्लेबाजी के लिए भेजा। दूसरी बात, आपको एक आध ओवर उनसे डलवा के देखना चाहिए था। जब हार्दिक को मार पड़ी, आई थिंक 16 रन आए थे एक ओवर में, वहीं पे अश्विन के 17 रन आ गए थे आई थिंक 10 ओवर के बाद ये बात है। तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था। और बाकी मैं इस योजना से कतई सहमत नहीं हूं कि बार बार आप कहें कि बहुत हुनर है, बहुत प्रतिभा है, और बार बार आप अश्विन के बारे में कहें इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें अश्विन की हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें अश्विन की है। लेकिन मैं कहता हूं लेग स्पिनर को आप जरूर खिलाइए। जी ठीक बोल रहे हैं आप। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं आपकी। आप ने शायद कवरेज को अगर ठीक से फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई एक्सपर्ट्स भी इस बात को लगातार कहते आए हैं। और अब मुझे लगता है कि रेपुटेशन के साथ आप टीम इंडिया को विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं भेज सकते। कि एक जमाना था जब सचिन तेंदुलकर रेपुटेड प्लेयर हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है उनके बारे में। वो बड़े रेपुटेड प्लेयर थे अपने जमाने के, और उसी रेपुटेशन की वजह से उनको मौके मिलते रहे, कई बार ऐसे सवाल उठते रहे। तो अगर सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, तो फिर केएल राहुल जो अब युवा है, मैं समझता हूँ प्रतिभा है उनके अंदर, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा को दिखाने के लिए सही मंच जब मिले तो प्रतिभा कम से कम दिखा देनी चाहिए। वो अब तक हुआ नहीं है, नजर नहीं आया 3-4 मैचेस जो भी भारत ने खेले, तो आप उसके साथ नहीं जा सकते। आपको कुछ महत्वपूर्ण और कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, अदरवाइज भारत का जो हाल या हश्र होता आया है विदेशी सरजमी पर, वो लगातार जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि भारत जैसे इतने जहां पे क्रिकेट को एक धर्म के समान दिया जाता है, उसकी पूजा करते हैं लोग, सुबह से लेकर शाम तक टीवी सेट के आगे लोग बैठे रहते हैं, क्रिकेट देखते सुनते आए हैं वर्षों से, और उनके मुझे लगता है जज्बातों के साथ अगर खिलवाड़ हो तो शायद वो ठीक नहीं है। और मैं अभी ये समझता हूँ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो शायद रुकनी चाहिए। आप शो के पहले कुछ कह रहे थे ऑफ एयर कि आपको बहुत कुछ कहना है इस मैच पर या इस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर, तो क्या राय है आपकी?
अभी नए नए रॉजर बिनी अध्यक्ष बने हैं, जय शाह वही है, मेंटेन है सचिव जो पहले पिछले 3 वर्षों से हैं। सौरभ गांगुली को आप जानते ही हैं, हटा दिया गया है। जी हाँ, ये तो बीसीसीआई की उठापटक है, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ, यदि भारत विश्व कप में गया है और विश्व कप जीतने की मंशा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मंशा है यदि, तो केएल राहुल के ऊपर आज हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। बार बार उनका बचाव किया जाता है, तमाम लोग उनका बचाव करते हैं, रोहित शर्मा भी करते हैं। विराट कोहली पे इतनी आवाज उठी थी जब विराट कोहली के रन नहीं बन रहे थे, तो भी विराट कोहली के 25-30 रन बन रहे थे हर मैच में। मैं देख रहा था, हर मैच में उनके 25-30 रन बनते थे। लोग कहते थे कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली को ड्रॉप हो जाना चाहिए। लेकिन आज केएल राहुल के ऊपर क्यों कोई नहीं बोल रहा है? पहले मैच में आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ, आप देखिए नीदरलैंड के खिलाफ, आप देखिए आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, देखिए स्विंग हर विकेट पे मिलेगी। बॉलर, क्वालिटी बॉलर हर टीम के पास है। अफ्रीका के पास रबाडा है, नोकिया है, न्यूजीलैंड के पास, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमें शायद खेलने को मिले उनके खिलाफ। वहां पे साउदी, वोल्ट, फर्गुसन है। ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, पेट कमिंस, हेजलवुड है। हर टीम के पास एक रफ्तार वाले बॉलर, सीम बॉलर हैं। वहां पे आप कब तक बचेंगे? कितनी बचने की गुंजाइश है? पहले भी धीमी बल्लेबाजी के कारण वो निशाने पर लगातार आते रहे हैं, और न मालूम क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यदि हम इस तरह से ही हम केएल राहुल के साथ जाएंगे या उनके जैसे और भी खिलाड़ियों के साथ, उनमें आर अश्विन का नाम भी शामिल है, तो यदि हम उनके साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार भी भारत का विश्व विजेता बनने का सपना कहीं अधूरा ही ना रह जाए। बहुत ठीक और सही बात बोली आपने। भारतीय क्रिकेट फैन सभी चाहते हैं कि वो विश्व कप जीत कर आए। 15 सालों से लगातार ट्रॉफी का इंतजार है। मैं समझता हूँ इस बार शायद पूरा होने की संभावना है। ऐसी बात नहीं है, भारत को रूल आउट नहीं कर सकते आप टूर्नामेंट से। जबरदस्त क्रिकेट खेली 2 मैचेस में। एक में मैं पहले भी कहता आया हूँ, पाकिस्तान वाला मैच भारत की बेहतरीन खेल से ज्यादा शायद उनकी किस्मत थी। हाँ ठीक है, विराट कोहली ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और वो मैच भारत को जीतना चाहिए था, जल्दी और आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच को हमने फंसा दिया। ये आजकल भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत ने उस मैच को खुद फंसाया, और उसके बाद पाकिस्तान आप जानते ही जिम्बाब्वे से हारकर इस प्रतियोगिता से लगभग बाहर होने के कगार पर खड़ा हुआ है। सिनेरियो पर बात कर लेते हैं एक बार कि इस समय सिनेरियो क्या है। साउथ अफ्रीका इस समय नंबर 1 पर है, तो कोई शक और सुबह की बात नहीं कि वो क्वालिफाई करेगी। अगर कुछ जबरदस्त उलट पलट ना हुई टेबल में तो मुझे लगता है फिर भी वो आगे जाएगी। अभी क्वालिफाई नहीं किया है, अभी 5 अंक हैं अफ्रीका के, अभी नंबर 1 पर है, लेकिन अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका मैच बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर एक बात ये भी थी, आज ऐसा पहली बार या एक बार और भी कभी मौका आया होगा जब पाकिस्तान के लोग भारत के जीतने की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद भारत इस मैच को जानकर हार गया है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता। क्रिकेट सभी टीमें जीतने के लिए खेलती हैं, वो इन तरह की साजिशों का हिस्सा नहीं बनती, और शायद इस तरह की बातों को नहीं तवज्जो देनी चाहिए, तूल देनी चाहिए, क्योंकि भारत एक अच्छी टीम है, फाइट किया अंत तक। ऐसा नहीं है 1-2 कैचेस मिस हुए, रन आउट मिस हुए, अगर वो नहीं होते शायद भारत जीत जाता। 2-4 10 रन और एक्स्ट्रा बन सकते थे, बहुत सारी चीजें इफ एंड बट हो सकते थे, बट हुआ ऐसा कुछ नहीं। भारत अंततः मैच हार गया। लेकिन हाँ, 20वें ओवर तक मैच को लेकर जाना 133-34 के स्कोर पर अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट, मैं मानता हूँ अच्छा प्रदर्शन रहा बॉलिंग यूनिट का। 1-2 फैसले गलत थे जिसकी वजह से भारत को इस मैच को गंवाना पड़ा। जी हाँ, मैं कुछ चीजें और कहना चाहता हूँ। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं, तो मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। पहली चीज कि जब बॉलर के पास, जब गेंदबाज के पास कुछ ना हो खास, और अपने अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रहा हो, 5 और 6 रन चाहिए हो, बार बार उसे समझाइश देने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करने दिया जाए, जो आज हो रहा था भुवी के साथ मैं देख रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये टैक्टिक ठीक नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम विश्व कप में आते हैं, हमारी एक मेंटलिटी बन गई है
पाकिस्तान से नहीं हारना है, चाहे दुनिया से हार जाओ। इस मेंटेलिटी को हमें खत्म करना होगा। यदि हमें ट्रॉफी जीतनी है तो हमारे को पाकिस्तान से जीतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैं भी मानता हूँ है, लेकिन हमें और टीमों के खिलाफ भी बेहतर गेम प्लान की आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान, हर व्यक्ति कहता है पाकिस्तान से मत हारो, या टीम में भी ऐसी सी बातें चलती कि हमें पाकिस्तान से कैसे जीतना है, उसकी क्या प्लानिंग है, लेकिन और टीमों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। यही एशिया कप में हुआ कि हम श्रीलंका से हार गए, आखिर पाकिस्तान से जीत करके श्रीलंका से हम हार गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी योजनाओं में कमी है, कहीं ना कहीं इसमें एक बेहतर योजना की कमी है। और मैं ये भी मानता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि ये हमें किसी एक टीम को लेकर नहीं चलना, हमें पूरे टूर्नामेंट के साथ चलना है कि हमें यदि ये टूर्नामेंट जीतना है तो हमें हर टीम के खिलाफ एक बेहतर योजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उसकी अंडर प्रेसिंग ज्यादा चल रही है, आगे कप्तान से भरे हो, क्या पता इस वजह से भी हो सकता है। आपको कहाँ लग रहा है कि विराट कोहली कहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, मेंटालिटी को बदलना चाहिए। पहले तो कई जगह एक बड़ा जबरदस्त मीम सा चला आ रहा है, भारत ने पाकिस्तान को जीत लिया तो इसका मतलब विश्व कप जीत लिया। ऐसा होता नहीं है, दरअसल आपको कई टीमों को हराना होता है। ये ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, राय शुमारी करता हूँ अपने साथ कि मतलब पाकिस्तान को हराना एक बड़ी चीज है भारत में, और होनी भी चाहिए। भारत को हारना नहीं चाहिए। बीइंग इंडियन, ये हमारा अपना हमेशा से सोचना रहता है, ख्वाहिश रहती है कि जी भारत जीत जाए कैसे भी करके, छल बल वड़ेवर। आपने कई सारी चीजें सुनी होंगी, तमाम नीतियां, कैसे भी करके भारत जीत जाए। इस पर विवाद लगातार होते रहे हैं, अंपायर्स के फैसले पर उंगलियां उठती रही हैं। कई बार ये भी कहा गया कि नो बॉल वो गलत दी गई, तो जैसे भी है भारत बहरहाल जीत गया। उसके बाद से हाँ, आज मैंने कुछ फैंस को क्रिकेट की कवरेज में सुना तो वो भी यही कह रहे थे जो आप बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान से जीत गए, बाकी इससे हार के कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये हार कहीं ऐसा ना हो भारत को चुभ जाए, क्योंकि बिल्कुल जिम्बाब्वे को आप हल्के में नहीं ले सकते। माना कि आज भी जिम्बाब्वे बांग्लादेश से केवल 3 रन से हारा है, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, और उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। और एक बात और जो भारत बांग्लादेश के मैच की है वो आपको शायद पता है, नहीं पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल बरसात की पूरी संभावना है और वो मैच धुलने के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। उसके बाद 1 पॉइंट भारत को मिलेगा और भारत की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को किसी मैच को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जीतने की कोशिश करनी चाहिए सारे मैचेस को। ठीक है, कोशिश की भी भारत ने आज के मैच में, अगर मैं कहूँ तो, लेकिन शायद कहीं कमी रह गई। काफी प्रदर्शन अच्छा करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूंगा, आज एक बार सिनेरियो बता देता हूँ। आज 3 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया जो कि बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था। बिल्कुल आपने बताया, 3 रन से वो मैच बांग्लादेश बमुश्किल जीता। उसके बाद दूसरा मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का। नीदरलैंड को सस्ते में आउट कर दिया और पाकिस्तान 6 विकेट से उस मैच को जीतने में कामयाब रहा। तीसरा मैच आज का खेला गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं, भारत ने मैच लड़कर हारा। ये कहीं ना कहीं भारतीय खेल प्रेमियों को एक संतोष जरूर देने वाला क्षण है। और कल के मैच की भी हम बात करें, कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड का मैच है ग्रुप 1 में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, और ग्रुप 1 की और दोनों की स्थिति में एक बार आपको बता देता हूं चलने से पहले। ग्रुप 1 में भी 6 टीमें हैं, 2 में भी 6 टीमें हैं। तो ग्रुप 1 में अभी 3 मैचों से 5 अंक हैं न्यूजीलैंड के, जो कि टॉप पे बना हुआ है। दूसरे नंबर पे रन रेट के आधार पे इंग्लैंड को घोषित किया है। 3 अंक हैं 3 मैचों से। ऑस्ट्रेलिया के भी 3 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण लग रहा हो कि आपने न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के भी
3 अंक हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। तो 3 टीमें 3-3 अंक पे हैं और अफगानिस्तान के 3 मैचों से 2 अंक है, 2 मैच टाई हुए हैं और 1 मैच वो हरा है। और श्रीलंका के भी 2 अंक हैं 3 मैचों से, यानी 1 मैच वो जीता है। ये है सिनारियो। और यदि भारत के ग्रुप की हम बात करें तो ग्रुप 2 में दक्षिण अफ्रीका 4 मैचों में 3 मैचों में आई थिंक 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 5 अंकों पे शेष पे बना हुआ है, यानी आज पहुंच गया है भारत को हटा के। भारत के 4 अंक हैं 3 मैचों में 2 जीत के साथ। और वहीं पाकिस्तान 2 में से दोनों मैच हार चुका है। नीदरलैंड भी 3 के तीनों मैच, सॉरी पाकिस्तान आज जीता है तो 3 में से 1 मैच जीता है। नीदरलैंड 3 के तीनों मैच हार चुका है। जिम्बाब्वे 1 ड्रॉ 1 जीत और 1 हार के साथ जिम्बाब्वे पर बना हुआ है। जिम्बाब्वे के 3 अंक हैं। और यदि हम आगे बात करें टाइगर्स तो बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के खाते में 2 जीत हैं 1 हार है। 2 मैच अभी भी बांग्लादेश के शेष हैं। मुझे यदि हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले पे दक्षिण अफ्रीका, दूसरे पे भारत और तीसरे पे कई टीमें हैं जिनमें जिम्बाब्वे तीसरे नंबर पे है और आई थिंक तीसरे पे भी बांग्लादेश है। सॉरी मैं यही आपको करेक्ट कर रहा हूं। बांग्लादेश तीसरे पे जी 4 अंक हैं बांग्लादेश के। चौथे पे जिम्बाब्वे है, 5वें पाकिस्तान है 2 अंक हैं और आखिरी स्थान पे नीदरलैंड है जिसका खाता नहीं खुला है। तो ये है इस समय आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस समय दोनों ग्रुपों की स्थिति क्या है सुपर 12 के। और दोनों ग्रुप से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, वो जाके सुपर 4 में खेलेंगी। पहली यानी जो ग्रुप 1 में टॉप पे रहेगी वो ग्रुप 2 की नीचे वाली टीम यानी सेकंड नंबर की टीम से खेलेगी। जो ग्रुप 2 की टॉप रहेगी वो ग्रुप 1 के सेकंड नंबर की टीम से खेलेगी। जी हाँ, इससे पहले कि हम शो को समाप्त करें एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आजकल हॉटस्टार ने एक विशेष व्यवस्था दे रखी है। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या फिर एल्डरली लोग हैं जिन्हें देखने में कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए ग्राफिक्स वगैरह को समझाने की व्यवस्था है। डिस्क्रिप्टिव ऑडियो कमेंट्री है, बगैर प्लान के भी उसे आप सुन सकते हैं। हॉटस्टार आपको केवल डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको लैंग्वेज यानी कि जब आप मैच चला लें वहां पे जाकर आपको लोगों पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है, वहां पर ऑडियो सेटिंग्स पर जाके आपको फॉलो इन पर सिलेक्ट करना है। वहां पर आप संजय बनर्जी, विनीत गर्ग जैसे महान कमेंटेटर्स को सुन सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। वहां पर लिखने का एक ऑप्शन दे रखा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है हॉटस्टार की। मुझे लगता है आप तमाम लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आपको कैसा लग रहा है? उनकी कमेंट्रीज तो वैसे भी महानतम कमेंटेटर्स की हैं, तो मैं समझता हूँ सबको अच्छी लगेंगी क्योंकि मेरे भी बड़े फेवरेट कमेंटेटर्स हैं। मेरे साथ रामकिशन जी हैं, उनके भी बड़े फेवरेट कमेंटेटर। हम दोनों कोशिश करते हैं कि एक बार उन लोगों की तरह बोलने या बातचीत करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब वही है ना, तो आप किसी का कंपैरिजन किसी से कर नहीं सकते क्योंकि जो विनीत गर्ग जी हैं वो हम नहीं बन सकते और जो संजय बनर्जी वो हम नहीं बन सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आप किसी न किसी आइडल, किसी न किसी व्यक्ति को अपना आइडल मानते हो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है आज हमने बहुत लंबी चर्चा कर ली। सिनेरियो भी आपको बता दिया गया है, सारी टीमों के टेबल समझा दिए गए हैं, अंक तालिका के साथ आपको बताया गया है। तो आप जोड़ घटा गुणा भाग जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। कौन सी टीम जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी टीम आपको लगता है सुपर 4 में पहुंचेगी। मेरी अपनी प्रेडिक्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड के पास शायद थोड़ा ज्यादा चांसेस हैं। आपकी अपनी टीम आप बता सकते हैं? फिलहाल मैं भी एक बार अपनी टीम बताना चाहता हूँ। सुपर 4 की मेरी टीम है भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। ये दिली इच्छा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अभी भी थोड़ा सा
संशय बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, इसलिए शायद वो आगे जाए। देखते हैं किसकी भविष्यवाणी ठीक होती है, आप अपनी जरूर बताइएगा। फिलहाल आज इस शो में इतना ही। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी यूं ही हमारे शो को देखते रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।